uh, Cyrus Mistry and Ratan Tata. That is Tata Group of Industries. And the other case, what was the other case which we were supposed to discuss today? Yes. I hope my voice is clear to all. Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We had decided that today we will be discussing two cases. First was the Tata case. And what was the other case? कल कोई था या नहीं लेक्चर में? क्या ये नए हैं चारों? आप लोग सब नए हो क्या? कल लेक्चर में नहीं थे? 6 students. Were you present in yesterday's lecture? Yes, sir. I think. हाँ, बोलिए फिर.
Yes, who has studied that case? Both the cases. First case was Tata, and the other case was what? Sir, Satyam case. Satyam case study. Who has studied that case? So I tried to read about the case. I have read about Omkar, the just Tata. wait. What about others? Omkar, just wait. What about others? Yes, others you studied or not? Students? Hello? Only for subject name, I know, sir. Yeah. No problem. No problem. We will see this topic in detail. Normally, this topic is so-called mathematical topic, but then there is no such mathematical problems as such. Yeah, there are small adjustments which we need to learn in this. But what exactly decision science is? This science helps us to take different decisions in businesses. There are in all 5 topics. In that 5 topics, there are 10 subtopics. So different topics they have adjusted in different chapters. But as and when we will start studying this, you will definitely enjoy this. Why? Because this is very important for any business. Any business you are doing, this is important topic. To read some topics like transportation is there, linear programming problem is there, a assignment problem is there, then different decision making problems are there. Decision making is again a separate chapter into it. If you are dealing with share market, so if X period is given to you, what will be the share price or share percentage in next 2 periods or next 3 years, that we can calculate. So there is a very interesting topic for this also, and which is controlled by Markov chain, right? Today I'll be giving you just introductory session. Now think about transportation, what exactly transportation problem is. In any business, the core aim is to earn profits. Anybody starting any business, they expect profit, right? And Yes, rarely it happens that someone is doing business for a charity purpose, which is very rare, or very few people are there, those who do business to help the community or to help the society, to help the poor. But most of the businesses, they do it for profit. Now, I think in my session in first or second semester, I have given you this example. There are 2 types of cost. One is fixed cost and another one is variable cost. In any cost, in any organization, there are 2 types of costs considered: fixed cost and variable cost. Fixed costs remain fixed. Now, account students or finance students must be knowing what is fixed cost. Fixed cost means every month you have to give electricity bill, every month you need to pay to the labor, every month there are few fixed taxes which you need to bear.
So these all comes under fixed cost, which we cannot reduce. Anyhow, it is very difficult to reduce this fixed cost for any organization, right? But when we see towards the variable cost, what is variable cost? Variable cost is price of the raw material purchased, or maybe price of the ad hoc labor. Ad hoc labor means temporary labor uh, which we have taken for few days, for 2 days, 3 days, 4 days. Whatever payment we need to pay, that becomes a variable cost. Now, variable cost reducing is easy. Fixed cost cannot be reduced. So the total cost of any organization is fixed cost plus variable cost. Fixed cost is same. Variable cost we can reduce it by paying attention towards some costs. Some costs means by paying attention towards the decision which the organization is taking. Like if you are talking about raw material, from where you are purchasing raw material. If you are purchasing some raw material of 50 units for 2000 rupees, is there any other vendor who can give this 50 units in maybe 1800 rupees or 1600 rupees or 1900 rupees? If yes, then we are able to reduce the cost by 100 rupees. And the total cost of producing the unit reduces by by the proportion of 100. Proportion of 100 means we have purchased 50 units for 100 rupees. So 1 unit, the proportion price will definitely reduce. So such type of decisions needs to be taken in organization. When we talk about transportation cost, you yourself transport from home to office, right? You transport yourself from home to office. आप गाड़ी पे बैठते हैं या आप कार में जाते हैं, do you add any value to it? Do you add any value to it? हमें हमारे बॉडी में कोई वैल्यू इसके ऐड हो रही है? This is just a price incur and nothing else. In organization also, when we move a product from table X to table Z or from plant A to plant B, we are not adding any sort of value into it. It is just a transportation and we incur lakhs and crores of rupees in transporting that raw material or transporting that work in progress or transporting that finished goods. You all are with me? Yes, sir. Yes, sir. Right, right. So we are talking about transportation cost, which does not add any value to the product. Now, it becomes very essential to decrease the variable cost. So variable cost comes under transportation cost comes under variable cost. Right? Now, this transportation cost needs to be reduced, and how we can reduce it? There, transportation problem helps us. In any managerial decision problem, there are different alternatives available. What I mean to say is, कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते हैं. In case if I tell you to go to Mumbai, you may take 2-3 different ways, right? You may consider 2-3 different ways, और उसमें से जो शॉर्टेस्ट रूट रहेगा जहां पे आपका पेट्रोल डीजल का खर्चा कम रहेगा, you will go and opt that. Same thing happens in transportation also. There are 4 different manufacturing units and there are 5 different supply units. Supply means जहां पे हम लोगों को इसको supply करना है, right? So just consider as 5 different warehouses, 4 different manufacturing units, 4 different factories in 4 different cities or states. इंडिया के कोई भी 4 different states में मेरा manufacturing units हैं और 5 अलग अलग states में मेरे warehousing units हैं. अब ये जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ मेरे 4 different companies में, how I am going to transport this from this 5 different warehouses? इसमें आता है permutation and combination. So permutation combination से हम लोग कर सकते हैं, but then the moment we start solving this problem mathematically, that is permutation and combination, it may take
1 2 3 days 4 days और मे बी मंथ्स टुगेदर, और इसका सॉल्यूशन हमें जरूर मिलेगा, बट उसमें टाइम बहुत चले जाएगा। whereas in any managerial decision, अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पे अभी भी इस ग्रुप में कोई बच्चा काम कर रहा होगा, he or she में जस्ट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स विद अस कि कितना डिफिकल्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेना, इफ यू आर एट टॉप पोजीशन और इफ यू आर एट मिडिल मैनेजमेंट। डिफिकल्ट क्यों होता है, उसका रीजन ऐसा है कि देयर इज अ रिस्क कि अगर आपने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन सही रहेगा नहीं रहेगा, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क। सेकेंड थिंग, द डिसीजन इज राइट बट उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। इफ यू आर एचआर मैनेजर और आपने किसी को निकालने का डिसीजन ले लिया है, राइट, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। लेबर यूनियन विल बी अगेंस्ट यू, दे विल स्टॉप द वर्क, दे मे हार्म यू, राइट, और द सीनियर मैनेजमेंट में आस्क यू द क्वेश्चन, आपने क्यों निकाला है, उसको आप लोग नोटिस भी दे सकते थे, आपने ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे सारे रिस्क अवेलेबल रहते हैं। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल व्हिच आई एम गिविंग यू। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 5 वेयर हाउसेस में अगर हम लोगों को प्रोडक्ट भेजना है, तो समझने की कोशिश कीजिए कि किस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से किस वेयर हाउस को हम लोगों को भेजना पड़ेगा, राइट। अगर हम लोग ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एक्स को भेज रहे हैं, उसका प्राइस कितना रहेगा। अगर हम लोग बी से एक्स को भेज रहे हैं, उसका प्राइस कितना रहेगा। सी से एक्स को भेज रहे हैं, कितना रहेगा। डी से भेज रहे हैं, कितना रहेगा। ये प्राइसेस हमारे पास रहती है और हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, राइट। मैट्रिक्स मीन्स व्हाट, ब्लॉक्स, रोज और कॉलम्स के ब्लॉक्स रहते हैं, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर हम लोग ये सब वैल्यूज रख लेते हैं। सपोज आपके एक्स एक्सिस पे ए बी सी डी लिखा है आपने, और वाई एक्सिस पे आपने जस्ट फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पे आपने 5 अलग अलग वेयर हाउसेस के नाम लिखे हुए हैं। सो ए से एक्स, ए से वाई, ए से जेड, ए से डब्ल्यू, ए से एस, ये सारी की सारी वैल्यूज है हमारे पास। सिमिलरली विथ बी एंड ऑल, सी एंड ऑल एंड डी एंड ऑल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा रहता है कि इसके आगे हम लोग यूनिट्स लिखते हैं कि कितने यूनिट्स इस सप्लाई सेक्शन को या फिर वेयर हाउसेस को चाहिए। सो डिमांड इज रिटर्न देयर, एंड कॉलम वाइज अगर हम लोग नीचे देखें तो हम लोग यहाँ पे सप्लाई लिखते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया व्हाट डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट इज एंड हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट इज, बिकॉज सीनियर माइट हैव टोल्ड यू कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, इसमें पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। when you are giving your MCQs, this semester also university has 99% decided that your exams will be online. I'm saying 99%, and there is 1% chance that your exam may takes place offline also. Let's see, 15th Feb तक अभी सारे colleges बंद कर दिए हैं। Now again it is a decision. Now transportation cost में जब हम लोगों को इसका यूनिट प्राइस मिल जाता है, वी गेट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। ये उसी तरीके से है जैसे आप लोगों ने एमबीए एडमिशंस लिए थे, आपने सारे अच्छे कॉलेजेस के लिस्ट डाउन किए थे, उनके फीस लिस्ट डाउन किए थे, और उसमें जो जो फैसिलिटीज अवेलेबल थे उनके लिस्ट डाउन किए थे, और फिर आपने उसमें से एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढा था। आई एम नॉट सेइंग बेस्ट सॉल्यूशन। आप या तो इंदिरा कॉलेज में भी एमबीए कर सकते थे, या पुंबई में कर सकते थे, या मुंबई में आप नरसिंह मुंजी में एडमिशन ले सकते थे, बट आपने एडमिशन कहाँ लिया, मैट्रिक्स में लिया। उसके भी कुछ अलग अलग रीजन, हर एक स्टूडेंट का एक अलग रीजन हो सकता है। समवन से कि इट इज नियर टू माय हाउस, समवन से कि आई एम वर्किंग सो दे गिव मी चांस टू वर्क एंड स्टडी आल्सो, समवन से कि फीस वाज लेस, that's why I've taken admission in matrix. Someone will say कि my friend was there in earlier batches and he has suggested me matrix because teachers are friendly, teachers helps us a lot, right? The lecture timings are good, morning and evening, and in between we can work and earn also. So ये सब चीजें आप लोगों ने लिस्ट डाउन की और उसके हिसाब से आपने चॉइस किया, बट देन दिस इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन, दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मैं क्या कह रहा हूँ, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऐसे ही डिसीजन मेकिंग करते समय हम लोगों को हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना है। इसमें मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम लोग यूज करते हैं, जिसको मोदी मेथड कहते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी नहीं, बट MODI, MO मींस मॉडिफाइड एंड DI मींस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग UV टेबल यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ सॉल्विंग ऑन द ब्लैक बोर्ड
or on solving on the whiteboard. So don't worry, this topic will be taught to you by solving it on blackboard. It will never happen that हम लोग आपको Excel में या इसमें सिखा रहे हैं, because ये जब तक blackboard में topic नहीं होगा ये आपको समझ नहीं आएगा. That's why we are waiting. Let other topics be over and then I'll start my topic. But आज time था इसीलिए I thought कि I must interact with you all. Now similarly assignment problem क्या रहता है? Transportation problem मैंने एक example आपको दे दिया कैसे रहता है. अलग अलग वेयर हाउसेस हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो यहाँ से वहां पे माल भेजना है, तो कहाँ से कम हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, ये हर एक यूनिट के लिए कम निकालना पड़ता है. इट मींस लोवेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी मिनिमम. इसके लिए अलग अलग 3 मेथड्स है. एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, एक मैट्रिक्स मिनिमम मेथड है, और तीसरा अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम लोग इसके मेथड्स निकाल सकते हैं. तो देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स व्हिच वी यूज, राइट. तो तीसरा जो है वो है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जो कॉम्बिनेशन करता है हाईएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का. तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर दिया, जो भी प्राइस बचता है जिस कॉलम या जिस रो में ये जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम रहेगा, so in assignment what we do is we assign different tasks to different workers, maybe different machines to different workers to work on, and depending on the product which we want we arrange this. Again it is a mathematical cum logical problem which we need to solve. I think I lost you when I was explaining LPP, linear programming problem. So in linear programming problem, whatever problem which we are facing in the organization, we try and understand the constraints. अब इसमें constraints किसको कहते हैं? What is constraint? Constraint means कहीं पे आपको problem आ रहा है, मतलब आपको raw material सिर्फ 500 kgs दिया है, आपके पास जो पैसे अवेलेबल है वो सिर्फ मे बी 50,000 रुपीज है. So this money becomes the constraint, raw material becomes the constraint, your labor becomes the constraint, your number of working hours in a day is 24. So 24 is a constraint for you, right? Excuse me. So looking at these constraints, we try and make a mathematical formula. हम लोग एक mathematical equation बना लेते हैं और उस equation को हम लोग solve करने की कोशिश करते हैं. There are 2 different methods to solve these equations. One is graphical method, जो हम लोग x and y axis पे कर सकते हैं. How many of you have seen graphical method? या कभी आपने स्कूल में कभी देखा है ग्राफ? x और y axis पे हम लोग लाइन लेते हैं. Exactly in the similar manner हम लोग इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं when it is of 2 dimension. 2 dimension means 2 ही वेरिएबल अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. 2 वेरिएबल मतलब क्या? एक टाइम वेरिएबल हो सकता है और एक मनी वेरिएबल हो सकता है. सो x और y हम लोगों ने ले लिया, बट अगर हम लोग 3 वेरिएबल लेके काम कर रहे हैं, x भी लिया है हमने, y भी लिया है और एक z वेरिएबल है, मे बी नंबर ऑफ आवर्स, वर्किंग आवर्स ऑन अ मशीन. किसी भी कंपनी में कंस्ट्रेंट्स हमेशा रहते हैं. कोई भी मशीन हमारे पास कंपनी में अवेलेबल है, उस मशीन पे अगर मैं दिन में 5 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो 5 अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट के लिए मुझे 24 आवर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. अब
ये जो 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, इसमें भी मुझे देखना पड़ेगा कि डिमांड किस प्रोडक्ट का कितना है, उस हिसाब से, और किस प्रोडक्ट को कितना टाइम लगता है उस मशीन पे बनने के लिए, उस हिसाब से मशीन्स को डिवाइड किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क रहता है, बट ओवरऑल उनका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट। सो हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर एम देखेंगे तो इट इज मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। कभी भी मैक्सिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट नहीं रहता है, मतलब कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहता है। इट इज ऑलवेज वी सी मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी अलग अलग टाइप से डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एंड डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। अब ये तीन चीजें मैं क्या बता रहा हूँ आपको, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। मतलब अनसर्टेनिटी मतलब आपको मार्केट में क्या होने वाला है वो पता नहीं है। यू आर ट्राइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, but what will be the market after launching? You don't know, you do not have any probabilities. Why? Because your product is a innovative product. Maybe आपने हाइड्रोजन से चलने वाली बाइक निकाली है which is innovative and which no one has used in the market, तो वो मार्केट उसका कैसे रहेगा वो आपको पता नहीं है। तो ऐसे इसमें हम लोग यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, जहाँ पे मार्केट पूरा अनसर्टेन रहेगा। When we talk about decision making under certainty, it means the similar type of products are there in the market and you're trying to launch a product which is bit different than the similar product. थोड़ा सा अलग रहेगा, उसके फीचर्स भी थोड़े से अलग रहेंगे। जैसे अलग अलग मोबाइल कंपनीज अलग अलग कंपनीज लॉन्च करते हैं एवरी वीक एवरी डे नाउअडेज, वैसे ही आप भी अपना कोई एक नया मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं, फीचर्स एंड ऑल एवरीथिंग इज सेम बट इन अ डिफरेंट मैनर। मे बी बैटरी का बैकअप जो है वो आपने ज्यादा दिया हुआ है, तो कुछ फीचर्स को आपने अलग कर दिया और आपका प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सो दिस बिकम्स डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। व्हाई सर्टेनिटी? बिकॉज यू नो मार्केट में अगर हम लोग यूथ को फोकस करके ये मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं तो यूथ को क्या क्या पसंद है किसी भी मोबाइल में, वी ऑलवेज ट्राई एंड स्टडी दैट। ये ऑलरेडी अवेलेबल है नेट पे भी, अगर आप सर्च करोगे कि व्हाट फीचर्स यूथ लाइक इन एनी मोबाइल, तो आपको काफी सारे फीचर्स पता चल जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए आपने अपना मोबाइल लॉन्च किया है, दिस बिकम्स डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, राइट? अब डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में कैसे रहता है? डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में आपको कुछ प्रोबेबिलिटीज पता रहती है और फिर भी आप रिस्क ले रहे हैं। मतलब मार्केट में आपको पता है कि ये XYZ प्रोडक्ट काफी कम चल रहा है, बट यू हैव कॉन्फिडेंस इन you are entrepreneur, you are a manager or maybe marketing manager of that product and you know कि नहीं मैं मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा से रहेगा because we are using different platforms to launch this. मे बी सोशल मीडिया से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, मे बी हम लोगों ने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करके रखा हुआ है, तो काफी जगह से हम लोग इसको लॉन्च करेंगे एंड पीपल विल डेफिनेटली लाइक माय प्रोडक्ट। सो डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क हम लोग कर रहे हैं, मार्केट लो है फिर भी हम लोग लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके रहते हैं। इसमें आगे अगर हम लोग देखें तो मशीनिंग प्रॉब्लम भी रहते हैं। मशीनिंग प्रॉब्लम में क्या रहता है? व्हाट वी डू इन मशीनिंग प्रॉब्लम, डिफरेंट मशीन्स आर देयर एंड डिफरेंट tools or different products to be given to the machines. अब ये सब हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं। जैसे एक मशीन पे अगर मुझे 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने हैं, जैसे मैंने अभी आपको असाइनमेंट में बताया या फिर LPP में बताया, तो ये 5 प्रोडक्ट किस सीक्वेंस में उस मशीन पे जाएंगे, आप समझ रहे हैं? या फिर 5 अलग अलग मशीन है और एक ही प्रोडक्ट है। आप पेन बना रहे हैं, पेन बनता है पुल्ट्रूजन से। पुल्ट्रूजन मीन्स व्हाट? वी पुश प्लास्टिक मोल्ड, प्लास्टिक थ्रू अ मोल्ड, और उसको पेन का शेप देते हैं। बाद में उसमें रिफिल आता है, रिफिल बनाते समय भी वी पुट टिप टू द रिफिल, प्लास्टिक पुल्ट्रूजन उसमें भी आता है, एंड देन वी पुट इंक इनटू इट, और उसके पीछे से जेल लगा दिया जाता है, देन दिस रिफिल वी पुट इट इन द पेन, उसका कैप लगता है, आगे से उसका हेड आ जाता है। तो ये सारे तरीके रहते हैं। अब एक प्रोडक्ट हम लोगों को बनाना है विच विल गो थ्रू डिफरेंट मशीन्स। आपने अगर किसी भी वाटर बॉटल का प्लांट देखा है जहाँ पे हम लोग मिनरल वाटर बनना देख रहे हैं, या फिर कोई भी एक टाइप का प्रोडक्ट
टीवी बन रहा है या मोबाइल बन रहा है, अगर आपने इसकी डॉक्यूमेंट्री भी यूट्यूब पे देखी है, तो एक ही प्रोडक्ट अलग अलग टेबल पे जाता है और वो बनते जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस लेआउट. प्रोसेस लेआउट, राइट. तो अलग अलग प्रोसेसेस से एक प्रोडक्ट जा रहा है. इसमें हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं. नाउ सीक्वेंसिंग में भी हम लोगों को क्या देखना पड़ता है कि कोई भी सीक्वेंस में किसी भी प्रोसेस के लिए कितना टाइम लगता है. तो वी नोट डाउन ऑल द प्रोसेस टाइमिंग्स. प्रोसेस टाइमिंग्स लिखने के बाद ये प्रोडक्ट हर एक मशीन पे कब जाना चाहिए या किस मशीन पे पहले जाना चाहिए, ए पे पहले जाना चाहिए, डी पे पहले जाना चाहिए या फिर सी पे पहले जाना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग सीक्वेंसिंग में सीखने वाले हैं, right? There is one more topic that is called as CPM and PERT. What is CPM? CPM is critical path method. And what is PERT? Program evaluation review technique. अब ये CPM PERT भी आप लोगों ने देखा है, आपको पता है ये क्या रहता है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशंस मुझे आपको सिखाने पड़ेंगे. Now what is critical path? What is critical path? किसी भी प्रोसेस में we always try and check what is critical. मतलब कहाँ पे डिफिकल्टी आ सकती है उसको हम लोग क्रिटिकल कहते हैं, राइट. तो हम लोग जब अपना घर बनाते हैं, आप लोगों ने कभी बिल्डिंग बनते हुए देखा है? जस्ट रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन. आपने घर बनते देखा है? पुणे में अगर आप देखें तो कितने सारे बिल्डिंग्स बनते हैं. डेली यू कैन सी अ न्यू कंस्ट्रक्शन. हैव यू एवर सीन? यू नो द प्रोसेस? प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, sir. या अंकुर को छोड़ के किसी और ने कुछ देखा है? Ankur is responding very well. Anyone else? Yes, sir. Very good. Omkar ने भी देखा है. Now, Yes, sir. yeah. So whenever we try and build our house, या फिर whenever a builder is trying to build the house, there are different levels into it. सबसे पहले तो foundation रहता है. Foundation के बाद then comes the column part, then comes beam part. Beam means जो vertical लगाया जाता है, and then comes the slab, then comes plastering, right? तो ये जो पूरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं फ्रॉम फाउंडेशन टू द रेडी मेड बिल्डिंग, इसमें से सबसे क्रिटिकल पाथ कौन सा है वो हम लोग क्रिटिकल सीपीएम से फाइंड आउट करते हैं. अब क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना क्यों जरूरी है? क्रिटिकल पाथ क्यों हम लोगों को फाइंड आउट करना जरूरी है? क्योंकि क्रिटिकल पाथ में अगर एक भी सेकंड का डिले होता है तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा. अभी आप ये जो मेट्रो का प्रोजेक्ट देख रहे हैं पुणे में, दे हैव ऑलरेडी फाइनलाइज्ड द लॉन्चिंग डेट. अब वो लॉन्चिंग डेट सपोज हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं 1 मार्च 2022 कि उसका हम लोगों को इनॉग्रेशन करना है. आपका मेट्रो शुरू हो जाएगा एक पर्टिकुलर ट्रैक, मे बी ऑन अ पर्टिकुलर ट्रैक, सिंहगढ़ रोड से स्वारगेट. अब सिंहगढ़ रोड पे तो अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, बट हम लोगों ने ये सब पहले ही प्लान कर लिया है. ये पहले ही कैसे प्लान कर लेते हैं कि ये 2 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. कोई भी आपको डैम बनाना है वो अगले 2 साल में तैयार हो जाएगा. या फिर आप लोग कभी ब्रिज देखते हैं, रोड पे ब्रिज बनता है तो वो अगले 1-1.5 महीने में हम लोग तैयार करके दे देंगे. ये सारी चीजें हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? ये हम लोग डिसाइड करते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड से. क्रिटिकल पाथ मेथड में हम लोगों को कुछ चीज के पहले से प्रोबेबिलिटी पता रहती है कि किस चीज को कितना टाइम लगता है, राइट? अगर ये टाइमिंग्स हम लोगों को हर चीज के पता चल जाए, फाउंडेशन के लिए जो पिट हम लोगों को खोदना पड़ता है, जो गड्ढा खोदना पड़ता है उसको कितना टाइम लगेगा, उसके अंदर हम लोगों को बार्स डालने पड़ते हैं, उसके ऊपर हम लोगों को सीमेंट कोटिंग करना पड़ता है, इन सब चीजों को कितना टाइम लगेगा, ये सारे के सारे टाइमिंग्स लिखे जाते हैं. अभी तो ये सब चीजें आपके कंप्यूटर पे हो जाता है. यू नीड टू पुट द वैल्यूज. It is already 8:05. Students, I'll take your leave. We will again continue next time. Just excuse us for today's happening, whatever has happened. But then due to some technical problem, we need to manage something. That was a wonderful morning talking to you all. We will discuss many more important things on decision making very soon, and we will definitely enjoy this topic. Though your seniors might have told you this is the difficult most topic, don't worry. I'll make it easy for you. Only logic is required in this topic. Fine. So next lecture will start immediately.
Thank you for joining and have a wonderful day. Thank you, sir. Thanks, sir.